So hello students, welcome to all of you after Sunday. So today I am with lecture number 10. In this lecture we will do the balancing of a chemical equation with another method, that is oxidation number method. This method is in your chapter redox reactions. Okay, so let's start the lecture. So method is oxidation number method. What is this method? We know that there is always increase or decrease in oxidation number. We know that there is always increase or decrease in oxidation number in a redox reaction. Okay, so what happened in a redox reaction? In redox reaction, actually there are two half fractions. One is called oxidation reaction. In oxidation reaction, there is loss of electrons, and so there occurs increase in oxidation number. It means in oxidation number always goes to 0 to plus side. Always goes to 0 to plus side. For example, I took one example, very common, very simple. For example, we have Fe, two positive ions. When it loses one more electron, it will change into F3 positive plus one electron. So in this term, we can say that there occur oxidation, and in this there occur increase in oxidation number, that is it goes from +2 to +3. This is called oxidation. So in oxidation, always oxidation number goes from 0 to plus. It means कि जब भी किसी एटम या एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है, उसमें जो एटॉमिक जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑलवेज 0 से प्लस वाली साइड जाता है. मींस वो ऑलवेज इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन नंबर. किसमें? इन विच हाफ फ्रैक्शन? इन ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन. Now the second half fraction of a redox reaction, it is called reduction. Okay, in reduction, what happens in reduction? It is opposite of oxidation. In reduction, there is gain of electrons, and so there occurs decrease in
oxidation number. So it means in reduction, it means in reduction, it means in reduction oxidation number always goes from plus to zero side. So these two half fractions, oxidation half fraction and reduction half fraction, they both make the redox reaction. It means in a redox reaction these both half fractions occur. redox reaction के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगी और रिडक्शन रिएक्शन भी होगी. ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो ऑक्सीडेशन नंबर है एलिमेंट का वो इंक्रीज करेगा. इट गोज फ्रॉम 0 टू प्लस साइड. फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक एनाइन दिया मैंने Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, जिसको हम फेरस साइन बोलते हैं. इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया जो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इस मींस +2 से +3 हो गया. जब भी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की तरफ जाए, प्लस की तरफ बढ़े, 0 टू प्लस जाए, 0 टू +1 +2 +3 +4 प्लस वाली साइड जाए, तब ऑलवेज ऑक्सीडेशन होती है एलिमेंट की. तो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन हुई, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और उस पर चार्ज आ गया 3 पॉजिटिव. ठीक है, so this is called oxidation. On the other hand in reduction reaction there occur gain of electron. इलेक्ट्रॉन का गेन होता है ऑलवेज, और जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा. डिक्रीज करेगा दैट मीन्स वो कहाँ जाएगा, वो प्लस से 0 की तरफ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको यहाँ मैं. फॉर एग्जाम्पल to carry one example, like there is Cl atom, it gains one electron and attain Cl negative. So what happen, this Cl is in elementary form. Every element when it is in elementary form then it has oxidation number 0. तो जब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसके ऊपर आ गया 1 नेगेटिव चार्ज. सो पहले उसकी तरफ 0 था चार्ज, ऑक्सीजन नंबर 0 था. जब उसने क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन के ऊपर आ गया 1 नेगेटिव. तो इट मींस वो 0 से माइनस की तरफ जा रहा है. ओके, हम यही बोल सकते हैं प्लस से माइनस की तरफ 0 की तरफ जाएगा, जब नेगेटिव साइड जाएगा मतलब 0 की तरफ जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, हियर अकर्स रिडक्शन and that is oxidation number goes from plus to which side, negative side, ऐसे ही बोल सकते हैं. या फिर it means from positive to 0, तो 0 से आगे नेगेटिव साइड आएगी, तो ये बोलेंगे हम इन रिडक्शन रिएक्शन. सो ऑलवेज इन रिडॉक्स रिएक्शन 2 रिएक्शंस अकर. रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शंस होती हैं, एक को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एक को हम रिडक्शन बोलते हैं. ऑक्सीडेशन के अंदर लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, 0 से प्लस वाली साइड जाता है. लाइक Fe2 पॉजिटिव जिसको हम फेरासाइन बोलते हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 3 पॉजिटिव आ गया. अब हम बोलेंगे कि 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव हो गया है, तो यहाँ इस पर ऑक्सीडेशन हुई है और ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हुआ है. ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज मीन्स जब भी आपका ऑक्सीजन नंबर प्लस वाली साइड जाएगा उस तरफ को इंक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, सेकंड वन इज रिडक्शन. रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है इसको हम ON बोल देते हैं, वो डिक्रीज करेगा एंड ऑलवेज गोज फ्रॉम प्लस टू 0 साइड और प्लस टू नेगेटिव साइड. लाइक आई टुक द एग्जांपल ऑफ Cl एलिमेंट, क्लोरीन की मैंने एग्जांपल लिए. कभी भी कोई आपका एटम एलिमेंट्री फॉर्म में पड़ा हुआ तो उसका ऑक्सीजन नंबर 0 होता है. ये 0 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट अटेन 1 नेगेटिव चार्ज. तो देखो यहाँ पर 0 से माइनस हो गया. जब 0 से माइनस हो गया तो क्या हुआ यहाँ पर, और रिडक्शन हुई. दिस इज कॉल्ड रिडक्शन.
सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इन एनी रिडॉक्स रिएक्शन देयर आर टू हाफ फ्रैक्शंस। एक को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन, एक को हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, इट गोज फ्रॉम 0 to प्लस साइड, एंड इन रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। तो व्हेनेवर वी डू balancing of a redox chemical reaction, or we have to balance oxidation reduction reaction, we must balance or equalize these increase or decrease in oxidation numbers. So जब भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसको इक्वलाइज करना पड़ता है, ठीक है। बट ये भी नहीं है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को का इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वलाइज करते हुए उनके नंबर ऑफ एटम्स को कम या ज़्यादा कर दें। साथ साथ में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ओबे करना है कि द मासेस ऑफ द रेक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द मासेस ऑफ द टोटल मासेस ऑफ द प्रोडक्ट साइड। इसको भी साथ में आपने ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड on the rectant side must be equal to the number of atom of each kind on product side, ठीक है। ये चीज प्लस ऑक्सीडेशन नंबर का जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उसको भी इक्वल करना है। दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ क्या बोला मैंने अभी। सो इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देयर आर डिफरेंट स्टेप्स which are used to balance a oxidation reduction chemical reaction. So let's start steps to balance an oxidation reduction reaction. So what we will do now, अभी हम करेंगे कौन कौन से स्टेप्स का यूज करके हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या आएगी, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं, वो वाली रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन क्या होती है, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट the step number 1 which is used to balance a oxidation reduction reaction. तो पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, write the skeletal means वो वाली रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। ये हमने कल भी पढ़ा था, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम स्केलेटल इक्वेशन ही बोलते हैं। राइट द स्केलेटल रिडॉक्स रिएक्शन फॉर all the non-reactants and products, for all the non-reactants and products of the reaction. Now students, step number 2 to balance our oxidation reduction reaction. Step number 2 is indicate the oxidation number of all atoms. Indicate the oxidation number of all atoms in each compound. So now step number 3, identify
the element which undergo identify the element which undergo a change in oxidation number, a change in ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया, दो तरह का चेंज आएगा ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। एक एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीडेशन में भी समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन के नंबर में, एक ही एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है, बट सम टाइम देयर मे आल्सो अकर द चेंज इन मोर देन वन एटम, ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोर देन वन एटम, बट यूजुअली द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर अकर about one atom only. So what happen, one times there occur increase in oxidation number and one time there occurs decrease in oxidation number. Okay, so you have to just see that oxidation of one element, oxidation of one element, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, मे भी इंक्रीज करे मे भी डिक्रीज करे, दोनों में से एक करेगा। वन एलिमेंट इंक्रीजेस, ओके, इट मींस जिसका फिर ऑक्सीडेशन नंबर, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड, दैट हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड oxidation. I will discuss it earlier with you that the element which loses electron and its oxidation number goes from 0 to plus side, it means their oxidation number increases, and that is called, that half fraction is called oxidation half fraction. And students, the element or atom which undergo oxidation, that atom or element is called reducing agent. Okay, remember it. So what is reducing agent? The atom or species which loses electron and itself it oxidizes, and that is called reducing agent. So second, what will happen if one element, एक एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज किया है तो दूसरे का किसी का डिक्रीज भी करेगा, तभी जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है वो कंप्लीट होगा। तो इन सेकेंड स्टेप व्हाट विल हैपन, ऑक्सीडेशन, यहां पर नंबर भी आएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन एलिमेंट डिक्रीजेस। सो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, that is called oxidizing agent, and that process is called reduction. Processes or half cell reaction is called reduction, and the agent is called oxidizing agent. So remember it, it is opposite, they are not according to the names. If oxidation occur, species whose oxidation occurred, that species is called reducing agent, and a species whose oxidation occur, that species is called oxidizing agent. Okay, species whose reduction occur, that species is called oxidizing agent. Okay, so स्टेप 3 में आपने ये चेक करना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है, किसका डिक्रीज किया है, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। नाउ स्टेप नंबर 4, I hope things are clear to you. What is step number 4? In step number 4, what you will do, टोटल हमने ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करना है। ओके, ये हम करेंगे स्टेप नंबर 4 के अंदर। कैलकुलेट calculate the increase or decrease in oxidation number
increase or decrease in oxidation number per atom। पहले आपने पर एटम का ऑक्सीजन नंबर कितना इंक्रीज है डिक्रीज हुआ वो चेक करना है। अगर एक से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है तो फिर उसमें आपका टोटल चेक करना है, टोटल कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। सो इफ मोर देन वन एटम इन्वॉल्व, इफ more than one atom involved, then find total increase, then find total increase or decrease in oxidation number, increase or decrease in oxidation number। so in step number 4 what you will do, क्या करोगे आप, आपने चेक करना है पर एटम इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर का। अगर एक से ज्यादा एटम है तो आप टोटल फाइंड कर लो। वो कैसे करना है हम करेंगे आगे, जैसे एग्जांपल लेके, जस्ट यू फॉलो द स्टेप्स। Now step number 5, what is step number 5? जो आपने स्टेप नंबर 4 में टोटल इंक्रीज और डिक्रीज चेक किया है ऑक्सीडेशन नंबर का, उसको इक्वेट करना है आपने। इक्वेट द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इक्वेट द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर with decrease in oxidation number, with decrease in oxidation number on the reactant side, on the reactant side by multiplying the formulae, by multiplying the formulae। okay students, of the oxidizing and reducing agents, of the oxidizing and reducing agents। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। इन स्टेप नंबर 5 आपने क्या करना है, जो आपने स्टेप नंबर 4 के अंदर टोटल इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड किया है ऑक्सीजन नंबर के अंदर, उसको इक्वेट करना है आपने। कैसे इक्वेट करना है आपने, प्रोडक्ट साइड नहीं करनी मल्टीप्लाई, रेक्टेंट साइड ही आपने मल्टीप्लाई करनी है। किसको मल्टीप्लाई करनी है, जो फॉर्मूले आपको दिए होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एंड रिड्यूसिंग एजेंट के। ओके, मल्टीप्लाई बाय सूटेबल नंबर 1 2 3 4 5 किसी के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपका जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो इक्वेट हो जाए विद डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये याद रखना है, मल्टीप्लाई सिर्फ किस साइड करनी है, मल्टीप्लाई ओनली ऑन द रेक्टेंट साइड विद व्हाट, विद एनी नंबर 1 2 3 4। किसके साथ करनी है, किसको करनी है, फॉर्मूले जो गिवन होंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के। आगे हम फॉलो करेंगे इन स्टेप्स को, यू जस्ट वांट दीस स्टेप्स एंड अंडरस्टूड इट। नाउ स्टेप नंबर 6, व्हाट डू विल डू इन स्टेप नंबर 6? इन स्टेप नंबर 6 हमने क्या करना है, सभी एटम्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करना है। बैलेंस all atoms except hydrogen and oxygen।
ओके, नाउ स्टेप नंबर, फाइनली इन स्टेप नंबर 7 हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 7 की मैं सब स्टेप्स बनाऊंगा। इसका फर्स्ट स्टेप है बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। कैसे बैलेंस करना है, एड H2O मॉलिक्यूल to the deficient, to the side deficient, to the side deficient in it, कि जिस साइड ऑक्सीजन कम होगी उस साइड आपने H2O के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। जितने ऑक्सीजन कम है उतने ऐड करने हैं H2O। अगर एक एटम कम है आपका ऑक्सीजन का तो आपने एक मॉलिक्यूल ऐड करना है H2O का, फुल मॉलिक्यूल ऑफ H2O फॉर 1 O एटम टू बैलेंस इट। ओके, and this process, this is used in any medium, whether the reaction occur in acidic or basic medium, चाहे रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही हो चाहे बेसिक में हो रही हो, ओ को बैलेंस करने के लिए एक ही मेथड है। ओ को बैलेंस करने के लिए जिस साइड ओ कम है उस साइड आपने H2O ऐड करनी है। ओके, नाउ इसका सब स्टेप नंबर 2, स्टेप 7 का, फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम। अब क्योंकि सारे एटम्स को बैलेंस करना है ना, स्टेप नंबर 6 में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी एटम्स को बैलेंस कर चुके हैं। स्टेप नंबर 7 में पहले आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, H2O ऐड करना है जिस साइड ऑक्सीजन कम है। कोई भी मीडियम हो, रिएक्शन किसी भी मीडियम में हो रही हो, चाहे वो एसिडिक है चाहे वो बेसिक है। अगर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है उसको बैलेंस करने के लिए हम चेक करते हैं मीडियम एसिडिक है या फिर बेसिक है, फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम। तो उसके लिए भी आपने चेक करना है फॉर एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम को में कैसे बैलेंस करना है आपने H एटम को। अगर आप ये सारी चीजें बुक्स में ढूंढने जाओ तो बहुत टाइम लगेगा आपको। Now I will clear to you all things in this lecture। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस साइड H कम है उस साइड आपने H पॉजिटिव आयंस ऐड करने हैं। ऐड H पॉजिटिव आयंस to the side deficient in the H atom, to the side deficient in H atom। Okay students, this is for acidic medium। acidic medium means चेक करना है आपने रिएक्शन के साथ कोई एसिड दिया और रिएक्टेंट साइड के नहीं दिया। सम टाइम डायरेक्टली दिया तो लाइक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रही है, वो तो देख के लग जाएगा पता। अगर नहीं लगता पता बट फिर भी रिएक्शन में दिया होता उन्होंने कि रिएक्शन टेक प्लेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। फॉर बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए आपने बेसिक मीडियम कोई रिएक्टेंट आपका बेस भी है तो उसके लिए आपने कैसे H को बैलेंस करना है। H को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, H2 ऐड करते हैं जिस साइड H डेफिशिएंट हो। ऐड H2O to the side deficient
to the side deficient in H atom, deficient in H atom, simultaneously साथ ही आपने क्या करना है, जितने आपने H2O ऐड किए होंगे सेम नंबर ऑफ आपने OH नेगेटिव भी ऐड करने हैं दूसरी साइड। ओके, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपने बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 H2O आपने ऐड किए लेफ्ट हैंड साइड, तो साइमल्टेनियसली आपको प्रोडक्ट साइड 2 OH नेगेटिव भी ऐड करने पड़ेंगे। साइमल्टेनियसली ऐड OH नेगेटिव कितने ऐड करने, जितने आपने H2O ऐड किए होंगे 2 किए तो 2 करने, 3 किए तो 3 करने, इक्वल नंबर OH नेगेटिव आयंस on the other side. Okay, this is your step number 7. So now the last step number 8. In that step what we will do, last step, in this step what we will do, finally balance the equation. This is last step, finally balance the equation by cancelling the common species. By cancelling the common species. So this is your last step of balancing any oxidation reduction reaction by oxidation number method. So what are these methods? दोबारा मैं स्टेप्स दोबारा एक बार रिमाइंड कराता हूँ। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है, ऑक्सीजन नंबर लिखने हैं हर एटम के ऊपर। स्टेप नंबर 3 में आपने देखना है किस एलिमेंट के ऑक्सीजन नंबर में इंक्रीज हुआ है, किसके अंदर डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आपने टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज फाइंड करना है। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपने जो ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हुआ है उसको इक्वेट करना है विद डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वो कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है उनको मल्टीप्लाई करना है विद एनी नंबर सुटेबल नंबर 1 2 3 4, ताकि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है दोनों इक्वल हो जाएं। फॉर एग्जांपल इस स्टेप को थोड़ा सा वैसे बताता हूं मैं आपको। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज टोटल हुआ है 6 का और डिक्रीज टोटल हुआ है 2 का, तो इक्वेट कैसे करोगे आप, इक्वेट कैसे करना है, जिसका डिक्रीज हुआ है लेफ्ट हैंड साइड उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करोगी, इंक्रीज के इक्वल है। इंक्रीज कितना है 6, तो 2 को 6 के इक्वल करना है, मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड उस स्पीशीज को जा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज किस केस में होता है, डिक्रीज होता है रिडक्शन के केस में। ऑक्सीजन नंबर का डिक्रीज रिडक्शन के केस में होगा। अगर रिडक्शन हुई है तो डेफिनेटली वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपने मल्टीप्लाई 3 के साथ करना है ताकि जो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज है वो इक्वेट हो जाए विद द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रही है बातें। अभी मैं करके बताऊंगा आपको, इसका एक एग्जांपल सेट करूंगा आपको यहां पर एक। अब एग्जांपल लेते हैं एक, तो यहां पर अभी हम कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे जिनको हम बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो टाइप 1 हियर इज
कोई भी आपकी कोई रिएक्शन है, अगर वो एसिडिक मीडियम के अंदर है, इन एसिडिक मीडियम, तो आप उसको कैसे बैलेंस करोगे? जैसे मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए हैं, वो स्टेप्स आप अप्लाई करोगे उस रिएक्शन के ऊपर, फाइनली यू गो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद दैट मेथड। तो एग्जांपल आपको दी हुई, कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड and the equation may be written as इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है? ये दी हुई है ना क्वेश्चन में, कॉपर Cu, कॉपर इन सॉलिड स्टेट, कभी भी सॉलिड स्टेट में होगा तो ऑक्सीजन नंबर हम उसका 0 सेट करेंगे, वो आगे करूंगा, बताऊंगा वो आपको, प्लस नाइट्रिक एसिड को उन्होंने प्रोटॉन लूज कर दिया, उसको लिखा NO3 नेगेटिव, इट विल गिव NO2 प्लस कॉपर 2 केटाइन। सो दिस इज योर रिएक्शन, और दिया गया है जो एसिडिक मीडियम के अंदर है, इसको बैलेंस करो। सो लेट्स स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे इसको। स्टेप 1 क्या था, जो इक्वेशन है वो लिख लो जैसे दी हुई है, कॉपर इन सॉलिड स्टेट प्लस NO3 नेगेटिव, इट विल गिव, जो दिया हुआ यहाँ पर NO2 अकॉर्डिंग टू कॉपर 2 केटाइन, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम? इन स्टेप नंबर 2 व्हाट वी विल डू, इन स्टेप नंबर 2 ऑक्सीजन नंबर को हम करते हैं, कितना कितना ऑक्सीजन नंबर है सभी का, ओके। तो दोबारा मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पर, सो स्टूडेंट्स, चलो यहां पर मैं आपको इस साइड ऑक्सीजन नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाता हूं अभी। जब भी किसी स्पीशीज के आगे, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट है, सॉलिड लिखा होगा भाई अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में, ऑलवेज उसका ऑक्सीजन नंबर आपने 0 लेना है। ये मैंने 0 लिखा, इसका ऑक्सीजन नंबर 0 है कॉपर सॉलिड का, ओके। अब इसमें मैंने फाइंड करना है, जैसे आपके पास सेकेंड रिएक्टेंट है यहाँ पर NO3 नेगेटिव, NO3 1 एनाइन, तो इसके अंदर मैं किसी एक का यूज करूंगा ऑक्सीजन नंबर और उसका यूज करते दूसरे का फाइंड करूंगा, बिकॉज हमें पता है ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन है आपकी, उसका जो मोस्ट ऑफ द टाइम जिसका ऑक्सीजन नंबर है वो -2 यूज करते हैं। तो इसके अंदर मैं -2 यूज करूंगा ऑक्सीजन के लिए, इसका ऑक्सीजन नंबर, ओके। मींस यहां पर मैं ऑक्सीजन का लूंगा -2, ऑक्सीजन का -2 लेते हुए मैं क्या करूंगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर फाइंड करूंगा। सो सी हियर अगेन, ये बेसिक चीजें हैं, इसको अंडरस्टूड करो, ठीक है। सॉरी 1 नेगेटिव है, इसका ओवरऑल चार्ज 1 नेगेटिव है, और ऑक्सीजन का कितना यूज किया मैंने, -2। अभी देखो सीखो यहां से, नाइट्रोजन का नहीं पता, उसको हमने x माना है, प्लस ऑक्सीजन का भी मैंने लिखा ऊपर -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय कितने हो यहाँ पर 3, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, बाहर सबके बाहर चार्ज दिया, यस, वो कितना है -1, इट इज इक्वल टू, ये -1 कहाँ से आया, ये -1 दिया हुआ ने, माइनस का मतलब ओवरऑल पूरी स्पीशीज के ऊपर चार्ज है ये वाला, ओके। तो इसको हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखेंगे, सो इक्वल टू -1 लिख दिया इस साइड। व्हाट हैपन, माइनस प्लस, ये आ गया आपका -6 इज इक्वल टू -1, तो क्या आएगा यहाँ से आगे आपका x -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, इसको हम उस साइड ले गए -6 को, -1 प्लस 6, x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल टू आ गया आपके, x इज इक्वल टू 5, ओके। और 5 के साथ आपने सिंबल भी देखना है कौन सा आया, ये बहुत जरूरी है ऑक्सीजन नंबर के अंदर। 6 बड़े हैं प्लस के हैं, तो x कितना आया, +5। ये मैंने ऑक्सीजन नंबर फाइंड किया है किसका, नाइट्रोजन का, यहाँ पर NO3 के केस में ये आ गया आपका +5। ऑक्सीजन का कितना, ये मान के चले इतना होता है इसका -2। अब ये नहीं है नाइट्रोजन का यहाँ +5 है, यहाँ भी मैंने +5 लिख देना है, वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीसीज होगा, उसमें भी फाइंड करेंगे, ठीक है जी। ये मैंने फाइंड किया NO3 2 नेगेटिव का,
ऐसे ही मैं फाइंड करूंगा NO2 में N का। सेकेंड केस इज NO2 के अंदर वैसे ही ऑक्सीजन का मैं -2 मान के चला हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीजन का हम -2 लेते हैं। जब भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है किसी एटम का पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो हमें 1 या 2 का पता होना चाहिए। जो नहीं फाइंड करना है वही हम फाइंड कर सकते, कोई एक फाइंड कर सकते हैं, बाकी का हमें पता होना चाहिए। ओके, जैसे NO2 में N का मैंने X मान लिया, प्लस ऑक्सीजन का -2 लिखा मैंने ऊपर, मल्टीप्लाई कितने हुआ है 2 है, इज इक्वल टू ओवरऑल 4। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा तो 0 के लिखेंगे इक्वल टू, देन X प्लस -4 आ गया इज इक्वल टू 0, देन ये माइनस है, माइनस होगा प्लस माइनस, ये माइनस है उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू +4। तो प्रोडक्ट साइड जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया +4। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया +4, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर -2। ओके, ये गिवन ही आपको, अगर अकेली स्पीशीज है उसका ओवरऑल 4 दिया, वो स्पीशीज का खुद का अपना भी होता है, ये इसका +2 आ गया। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, इन स्टेप नंबर 3 वी विल डू इक्वेट करेंगे, सॉरी काउंट करेंगे कितना कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले दोबारा लिखूंगा ये रिएक्शन में, यहाँ पर कॉपर हैज ऑक्सीजन नंबर 0 प्लस इन NO, इसका यहाँ +5, यहाँ -2, इन NO3 1 नेगेटिव, नाइट्रोजन है +5, ऑक्सीजन हैज -2 ओवरऑल। सो NO2 यहाँ नाइट्रोजन का +4, ऑक्सीजन का -2 प्लस इस साइड कॉपर का कितना है +2। अभी यहाँ मैं स्टेप नंबर 3 में क्या करूँगा, चेक टू कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। यहाँ देखिए मीन्स कि कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। लाइक कॉपर 0 से +2 हो गया, सोचो माइंड में क्या हुई, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुई। जब भी 0 से प्लस वाली साइड जाएगा, मैंने बोला है इट इज ऑलवेज, ये स्टूडेंट्स हुई है ऑक्सीडेशन, 0 से +2 चला गया, ऑक्सीडेशन हुई है। साथ में लिख लो कितने का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन में ऑलवेज इंक्रीज होगा, तो क्या होगा फिर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 0 से +2। यहां चेक करो, इस साइड लिख रहा हूं मैं, 0 के बाद क्या आएगा आपका +1, +1 के बाद क्या आएगा आपका +2, 0 से +1, +1 से +2, तो टोटल इंक्रीज कितने का हो गया 2 का। सो ऑक्सीजन नंबर इंक्रीजेस बाय 2 पर एटम। ओके, अब इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज भी मस्ट हुआ हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों ही होती है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। अब यहां चेक करिए, +5 से +4 हो गया, ठीक है। अब +5 से +4 मीन्स कि माइनस वाली साइड, 0 वाली साइड जा रहा है, ऑक्सीजन नंबर कम हो रहा है। जब भी ऑक्सीजन नंबर कम होगा तो क्या होती है फिर रिडक्शन होती है। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय, कितने का डिक्रीज हुआ, +5 से +4 हो गया, बाय 1 पर एटम। ओके, मैं ये चीज नीचे लिख देता हूं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu कॉपर का इज इंक्रीज्ड बाय वो अभी बताया मैंने कितने का, बाय 2 पर एटम, और दूसरे का क्या हुआ, कम हुआ, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन उसका डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज बाय कितने का डिक्रीज हुआ है, बाय 1 पर एटम। ओके, नाउ अभी हम स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे, इनके जो ऑक्सीजन नंबर इनको इक्वेट करेंगे, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग। नाउ
Continue the step number 4. Now in step number 4 we will equate the increase in oxidation number with decrease in oxidation number. So क्या लिखेंगे अभी हम स्टेप नंबर 3 में हमारे पास इक्वेशन है वो लिखेंगे हम. व्हाट इज द इक्वेशन? इट इज Cu कॉपर जिसके ऊपर 0 ऑक्सीजन स्टेट थी प्लस NO3 नेगेटिव इसके ऊपर +5 यहाँ पर -2 इट विल गिव NO2 प्लस कॉपर +2 ना यहाँ पर +4 फाइंड किया, ऑक्सीजन का हमने क्या लिया -2. अब इसमें क्या करेंगे स्टेप नंबर 4 में इंक्रीज या डिक्रीज को हम इक्वेट करते हैं. देखिए ठीक है स्टूडेंट्स. देखिए यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 पर एटम. 2 का इंक्रीज हो रहा है इस साइड, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 पर एटम. अब इक्वेट करने का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करना है. इंक्रीज 2 का हो रहा है और डिक्रीज 1 का हो रहा है, तो इक्वल कैसे करेंगे? 1 को 2 बनाना है हमने. 1 को 2 कैसे बनाएंगे हम? अगर 1 को 2 बनाना हो तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? उसको 2 के साथ करेंगे, तभी 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के. तो डिक्रीज किसका आ रहा है? 1 का डिक्रीज किसका हो रहा है? NO3 का 1 का डिक्रीज हो रहा है. ऑक्सीजन नंबर का जो डिक्रीज बाय 1 पर एटम है वो किस केस में हो रहा है? NO3 के केस में हो रहा है. तो NO3 को हम क्या करेंगे? इस डिक्रीज को इक्वेट करेंगे विद इंक्रीज इन द ऑक्सीजन नंबर ऑफ दिस Cu कॉपर. ओके, तो इसको यहां पर तो आपका 2 का इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीज 1 का हो रहा है. 1 को 2 करने के लिए तो हम क्या करेंगे? अब मैं यहां पर लिख रहा हूं ये चीज, कॉपर 0 सॉलिड प्लस NO3 +5 -2 ओवरऑल चार्ज -1 NO2 +4 -2 कॉपर +2 तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर? अब इस इंक्रीज को इस डिक्रीज को इंक्रीज के इक्वल करने के लिए इसको मैंने यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया. आई होप आपको पता लगा होगा कि मैं दोबारा यहाँ पर साइड में बताता हूँ आपको. यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉपर जो 0 ऑक्सीजन स्टेट में था वो कॉपर +2 में चला गया. NO3 1 नेगेटिव के केस में जो नाइट्रोजन +5 में था वो चला गया आपका +4 की स्टेट में. तो आप इसमें आपने क्या करना है? यहाँ पर क्या है? इंक्रीज हो रहा है. कितने से? इंक्रीज बाय 2. यहाँ पर क्या आ रहा है? +5 से +4 गया है, डिक्रीज बाय 1. ठीक है, अब इस 2 और 1 को इक्वल करना है. एक ही मेथड है, तरीका क्या होगा? फिर दोनों में से किसी एक को इक्वल करेंगे, वो दूसरे इक्वल अपने आप आ जाएगा. ठीक है, एक जो आपका इंक्रीज है, इंक्रीज 2 से हो रहा है, डिक्रीज 1 से हो रहा है. अब डिक्रीज को इंक्रीज के इक्वल करना है तो क्या करेंगे? जिसका डिक्रीज हो रहा है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. डिक्रीज को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ. तो डिक्रीज इसका हो रहा है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो इंक्रीज के इक्वल आ गया. तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा 2 NO3 नेगेटिव. ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू विल डू इन स्टेप नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज हमने इक्वेट कर लिया है. अब स्टेप नंबर 5 में हम क्या करना होता है? इन स्टेप नंबर 5 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करना है हमने. ठीक है, सो इन स्टेप नंबर 5 बैलेंस अदर एटम्स except H atom and oxygen atom. और H को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करेंगे. अब मैं नीचे इक्वेशन लिख रहा हूं,
अब मैं इनकी ऑक्सीजन स्टेट वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा, इक्वेशन नहीं लिखूंगा, अब नीड नहीं उसकी, हमने कर ली बैलेंस। ओके, सो व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल वाला यूज करेंगे मेथड, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं, अदर आइटम्स कौन कौन से हैं, ओ और एच को छोड़ के बाकी अदर आइटम्स कौन कौन से, कॉपर है, एक नाइट्रोजन है, बाकी ऑक्सीजन है, वो तो ओ में आ गई, ठीक है, मीन्स कॉपर और एन को बैलेंस कर रहा है। तो इस साइड अगर हम बात करें कॉपर एक है, इस साइड भी कॉपर एक है, क्योंकि आगे लगा कुछ नहीं लगा उसके भी। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आगे यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इस साइड नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 9 ध्यान सुना उनको अंडरस्टूड हो रहा है स्टेप कैसे करना है। तो अभी क्या करेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो गई, कॉपर ऑलरेडी बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन इधर हो गए, 2 नाइट्रोजन इधर हो गया। अब स्टेप नंबर 6, फाइनली अब हम क्या करेंगे इन स्टेप नंबर 6, फर्स्टली वी विल बैलेंस द ऑक्सीजन आइटम, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। इन स्टेप नंबर 6 फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके बैलेंस द ओ एटम। ओके, ऑक्सीजन एटम कैसे बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम मैंने बताया आपको, कोई भी मीडियम हो कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग H2O ऐड करेंगे जिस साइड ऑक्सीजन कम है। दोबारा मैं रिएक्शन लिखूंगा यहाँ पर, कॉपर प्लस 2NO3 1 नेगेटिव 1 एनाइन, इट विल गिव 2NO2 प्लस कॉपर 2 प्लस। अभी क्या करना है यहाँ पर, ऑक्सीजन चेक करो पहले, लाइक यहाँ पर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, O3 लिखा हुआ है, NO के आगे 2 लिखा हुआ है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई की, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 हो गए। दिस साइड ऑक्सीजन कितने हैं 6, उस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, ये 2 लिखा हुआ बट इसके आगे 2 लिखा है, 2 2 जा 4, इस साइड 4 है। अब क्या करना है, नाउ यहाँ पर 6 है आपके ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर आपके 4 ऑक्सीजन एटम, 4 को 6 कैसे कर रहे हैं, कितने H2 ऐड करने पड़ेंगे, एक ऑक्सीजन के लिए हमने 1 मॉलिक्यूल ऐड करना है H2O का, 2 मॉलिक्यूल्स का हमें तो 2 H2O ऐड करने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 H2O, अब 2 H2O पहले लिखा है, आप चेक कर लो ऑक्सीजन हो गए पूरे, 4 यहाँ पर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 लिखा हुआ आगे, 2 1 जा 2, यहाँ 2 हो गए, 2 प्लस 4 कितने हो गए 6, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया अभी ऐसा करने से, ठीक है। अब हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ, बैलेंस द H एटम, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के 2 आप तरीके हैं, आपने मीडियम चेक करने हैं, एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर तो आपका एसिडिक मीडियम है तो उसमें सिंपल आपने जिस साइड H कम है उस साइड आपने H पॉजिटिव आयन ऐड कर देने और कुछ नहीं करना है। अगर बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस साइड आपका हाइड्रोजन कम है, तो फाइनली हमारे पास बैलेंस करने के बाद इक्वेशन क्या आई है, कॉपर सॉलिड प्लस 2NO3 1 एनाइन प्लस 4H positive and it will give 2NO2 plus copper 2 cation plus 2H2O. So this is your balance equation। लास्ट स्टेप में जो हम किए स्टेप नंबर 7 के अंदर, उसको करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन हमने कौन से मेथड से बैलेंस की है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ। आई थिंक आई थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई आपको आज चीज़ें। सो कमेंट on today's lecture how it was gone, and also subscribe and share my lecture, my classes, Dalton classes. Okay students, and once again thanks to watch this video.